दिस ह्यूमिलिएशन थिंग आपने लगातार महसूस किया होगा कि आपका जो कमेंट सेक्शन है उसमें मैंने भी महसूस किया, लेकिन मैंने देखा कि आपके यहाँ तो बहुत ज्यादा है कि आपके कमेंट सेक्शन में लगातार कास्ट बेस्ड नफरत जो है वो दिखाई देती है, रिजर्वेशन के खिलाफ नफरत दिखाई देती है। लेकिन रोचक हाँ दोनों सेम है। लेकिन रोचक बात ये है कि ये जो फैक्टर है ये आपको राष्ट्र के खिलाफ भी दिखाने की कोशिश करते हैं। बार बार हम लोग लगातार सो कॉल्ड एंटी नेशनल वाली शब्दावली में हमें संबोधित किया जाता है। आपकी क्या समझ है ये जो जिस नेशनलिज्म की बातचीत चारों तरफ होती है, क्या उसका कैरेक्टर भी ब्राह्मणिकल है? What I would suggest is the Hindutva nationalism जो है and the whole concept of Hinduism is such of a social construct because Hindu society हम देखेंगे जैसे डॉक्टर अंबेडकर में बताते हैं there is nothing called one Hindu society, it's a collection of castes. इन सबको political motive हिंदू एक दिखाने के लिए it basically is a recent identity. The entire identity was the caste identity, and then the collection of these upper castes actually started calling themselves Hindu. And the easiest method to consolidate the whole Hindu fold into one is to create a boogeyman, which they so sometimes they say it's a Muslim, sometimes they say it's something else, sometimes they say LGBT, sometimes उनको इस दुश्मन चाहिए लगातार। और ये सारे के सारे दुश्मन, बड़ी रोचक बात है कि अलग अलग धाराओं में प्रोग्रेसिव बात करने वाले सारे लोग आपको दुश्मन दिखाई देंगे। जेंडर जस्टिस के लिए बात करने वाले लोग भी दुश्मन दिखाई देंगे आपको। इनफैक्ट इकोनॉमिक जस्टिस के लिए बात करने वाले, ट्राइबल राइट्स के लिए बात करने वाले लोग भी आपको दुश्मन दिखाई देंगे, वो भी आपको एंटी हिंदू एंटी नेशनल दिखाई देंगे। किसी भी तरह की जस्टिस, किसी भी तरह की न्याय की मांग करने वाले लोगों को बड़ी आसानी से आप दुश्मन बना सकते हैं और फिर आपको अपनी एक लार्जर आइडेंटिटी खड़ा करना आसान दिखाई देता है। यू ऑल्सो फेस द सेम। Yeah. So I get all sorts of comments that oh you're talking against Hinduism, तुम्हारे पापा तो कोई मौलाना होंगे, ऐसा मौलवी के बेटे हो ऐसे। So that sometimes they also call me rise back convert for some reason, or I'm a missionary, Vatican funded something. Like I don't get it. Like sometimes they say I'm a Muslim, sometimes they say I'm a Christian, sometimes they say. But have you realized that their understanding of Dalits? There are many sections in terms of your language, in terms of your talks, जिनके बेसिस पे लगता है कि yes, आप उनके खांचे में फिट बैठते हैं। But at the same time, the kind of language you use, the flow of English you have, your appearances, your background, you're coming from IIM, it unsettles them. Yeah. It unsettles them because that is not a typical Dalit in their mind. How do you handle that and what kind of comments do you get? Because it's like, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मसलन बिहार से आते हैं और उन्हें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि यार तुम तो बिहारी नहीं लगते हो। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ और चूंकि मेरे पास एक बैकग्राउंड है और मैं एक पर्टिकुलर तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे अक्सर ये कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है कि तुम तो हिंदी वाले नहीं दिखाई देते हो। इन द सेम कॉन्टेक्स्ट आप भी दलित नहीं दिखाई देते हो। Isn't it happened within the police station? In the police station? Yeah. Tell us more about it. So when my page was suspended and castless सब ये जा रहे थे, तो we went to the police station to file कि castless है ऐसे atrocities act. And he said SC atrocities act, आपको पता है क्या होता है? Like I was like yeah, I mean आप वो हो आप तो ऐसे लगते नहीं हो। आजकल कौन दलित होता है? आप तो पढ़े लिखे हो, कपड़े वपड़े ठीक है आपके। I don't know what he expects. मैं फटे कपड़े पहन के जाऊं क्या वहां पे? So not only that, it also happens in a lot of, जैसे आपने बोला था dating perspective में, जितने sapiosexual this हमें ऐसा लड़का पसंद है वैसा लड़का पसंद है, that all diversity is one side, but the caste thing, that you can be as smart as possible, as well spoken as possible, anything as possible, but the moment they know that you are from SC/ST background or something, that उनका face का expression change हो जाता है। Right. And in some candid conversations, the girl tells me that look, you're nice and all, but घर वाले नहीं मानेंगे, so there's no point. There's no point to it. There's one girl in one of the experiences she was telling, घर वाले general fine, OBC चलेगा, accept कर लेंगे, SC/ST ना, that's too much. Right. मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ, हमारे यहाँ काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, माइनॉरिटीज से आते हैं। एंड
माइनॉरिटीज पर बातचीत करते समय आई रियलाइज दे आल्सो फेस द सेम कि ये लगातार होता है. व्हाट्स योर टेक दिस? ये जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज हैं, ये इस समय एक लार्जर हिंदू नैरेटिव में जो हिंदुत्व नैरेटिव खड़ा हो रहा है उसके अगेंस्ट एक दुश्मन की तरह दिखाई देते हैं. दे आर बीइंग यूज्ड अ लॉट इन द सेंस. Do you believe that it is time when the other marginalized section, for example, the Dalits, they should have collaboration with the minorities to understand that they face similar, if not the same, marginalization? I think from a lot of the Dalit point of view, our history, our own history में हमें ज़्यादा education नहीं मिलता है. And even from our parents, I think वो they're slowly generation after generation we are forgetting what happened. And not too long ago, when Dr. Ambedkar was fighting for the Hindu Code Bill, ये RSS वालों ने when Dr. Ambedkar was alive, वो शव यात्रा निकाला था. They did not accept. And now they're pretending as if they're the best friends of Dalits. Right. This and that. So one thing we'll have to realize that this whole Hindu bhaichara, Hindu unity में, we are not the mainstream part. The Brahmin leader or the Rajput leader can tell us कि आप हमारे भाई हो, हमारे ये हो. बट द मोमेंट उसकी बेटी को आपसे प्यार हो जाएगा वो आपको काटने आ जाएगा. दे विल नेवर एक्सेप्ट दैट. हाँ, तो ये हिंदू भाईचारा जो दिखाते हैं, इट इज गुड फॉर द ब्राह्मण्स एंड द राजपूत्स एंड द खायस्ट्स टू हैव इट. एंड जितने जो दलित एंड आदिवासी कम्युनिटीज के हैं, दे आर मोस्टली यूज्ड एज फुट सोल्जर्स फॉर देयर बिजनेस. कि हाँ तोड़ फोड़ मचाना है, इट विल मोस्टली बी आवर पीपल फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हु विल बी पुश्ड इनटू दैट. बट इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस इनटू द मेन स्ट्रीम वो नहीं मिलने वाला. And the biggest example I give of that, when I want to make a Dalit Hindu so to understand, कि will that guy accept if you fall in love with his daughter? And the answer is always no, resounding no. जितने भी वो कट्टर हिंदू सब एक हैं, फिर they also tell us it is based on your कर्म and गुण. हाँ, हम जितना भी उनको the final question I ask is, would you allow your sister or your daughter to marry into a Dalit or an Adivasi family? The answer is always no. So that itself shows the Hindu unity is a moh maya. It doesn't really exist. It only ये जो सारा का सारा क्षेत्र है, इसमें नफरत का एक कारण रिजर्वेशन भी रहता है. या कम से कम रिजर्वेशन एक टूल की तरह आता है जब आपको लगातार अलग अलग जगह पे दिखाया जाएगा कि नहीं देखिए बाकी सब चीजें सही हैं, बट अब तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी की बात करता है, इक्विटी की बात करता है, और ऐसे में आप रिजर्वेशन. एंड देन हम लोगों को एक के बाद एक हम रट गए हैं अब जो डायलॉग्स, जो तर्क वहाँ दिए जाते हैं. तो मैं उन तर्कों की चीरफाड़ करने के लिए आपसे नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस रिजर्वेशन पे जो आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं उसे काउंटर करने के लिए अगर हम टोटल डाटा को देखें तो हमें ये समझ में आता है कि देश में जितनी नौकरियां पैदा होती है, अगर आप देखें तो अधिकतर तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसकी नौकरी में कोई रिजर्वेशन नहीं है. प्राइवेट सेक्टर में कोई रिजर्वेशन नहीं है. आप इवन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के सर्टेन सेक्शन है जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है. वी डिड अ नंबर क्रंचिंग और समझ में आता है कि देश के पूरे रोजगार में एम्प्लॉयमेंट में जो रिजर्वेशन है दैट इज अराउंड 4% इफ यू टेक द एंटायर. और उसके बाद कितना है? क्या आपको लगता है कि ये जो रिजर्वेशन पर जो नफरत है, इसकी वजह क्या है? क्या ये एंटाइटलमेंट है कि ये सारा हमारा ही था जो हमसे छीना जा रहा है, द अपर कास्ट इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट, या इट इज समथिंग जस्ट अ टूल टू डू द बेशिंग? From at least the audience I talked to, at least before I started my pitch, तो IIM वाले हैं जिनको मैं समझता हूँ they are considered the पढ़े लिखे लोग of the country, the elite. Even in them, their understanding towards why reservation exists is very, very base level. It is like, हाँ वो ये कुछ communities थे जो backward हो गए थे, economically poor थे, तो उनको include करने के लिए. In even for them, in their understanding, the baseline is economic inequality. Right. उनका understanding उससे आगे नहीं बढ़ा है. I think the core problem here is the way we teach our history. If you look at, for example, say Nazi Germany. In Germany, they teach you that the Holocaust हुआ था, Jews को हमें ऐसे treat किया हुआ था, and now in our history हम प्रायश्चित करेंगे उसका. And even I wouldn't say America is the perfect example, but even in American textbooks, the way they teach slavery, उसमें chapters हैं बड़े-बड़े, when they explain in detail what happened, why it is wrong, and कैसे इनको dehumanize किया गया था, exclude किया गया था.
And when that is taught from a young age, and people understand that, ठीक है, even if we have diversity, equity, inclusion, and reparations, it makes sense because इनके साथ बुरा हुआ है. Whereas Indian education system primarily fails. Huge denial. Primarily fails. They'll not even talk about it. First they will say वो वर्ण सिस्टम था जो ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था, कास्ट कुछ था ही नहीं. एंड देन कास्ट के बाद आता है तो कहते हैं वो तो ब्रिटिशर्स लोगों ने उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया था. एंड देन वो कहते हैं जो वी हैव सम रिकॉर्ड्स, शूद्रस को तो पढ़ाया जाता था, ऐसा नहीं कि उनको एक्सक्लूड किया जाता. एंड देन द अनटचेबिलिटी इन टेक्स्ट बुक्स इज one line, maybe 2 lines. But this is the history of 30 to 50% of the population of India, which is relegated to 1 line, 2 line. तो इनको वो सिस्टम नहीं समझ में आता है. So they don't take it seriously. But when reservation की बात आती है, it is something which directly impacts. कि वो उनको लगता है मेरा कट ऑफ तो इतना हाई है, इनके लिए तो कम कट ऑफ में हो गया.